Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So our next topic will be Vice President. We have completed the President. अच्छा, before starting this explanation of Vice President, please take a look on the table of precedence. Table of precedence होती क्या है कि मान लीजिए we have organized a meeting in a particular hall. And all the functionaries, public functionaries are invited to attend this particular meeting. So जो मतलब मीन्स जो सेक्रेटरीज होंगे या जो भी IAS बाबू उधर बैठे होंगे तो किन किन को नमस्ते बोलेंगे पहले, मतलब इन जनरल टर्म्स नमस्ते नहीं बोलेंगे बट किस किस को ज़्यादा वैल्यू देंगे. सो डैट इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. दिस इज़ अ लिस्ट in which president occupies the top position, then the importance of vice president will come, then prime ministers will come, then all the governors, like this is the whole list of table of precedence. पर पहले के हमने 6 या 7 याद कर ले, that is enough for the examination. So take a look of this table of precedence. So I think you have took a great look on this table of precedence. Now starting with our vice president topic. So first of all, this particular position has been constituted on the lines of vice president of USA. ठीक है, अभी कौन है करंट में USA वाइस प्रेसिडेंट? बहुत ही फेमस, चलो ये भी बता देता हूँ, लेडी है, सबको पता ही होगा बिकॉज रिसेंटली USA इलेक्शंस हैज़ बीन टुक प्लेस. सो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कैलिब्रेटेड ऑन द लाइंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. थोड़ा सा डिफरेंस ये है, चलो वो भी बाद में देखते हैं, पर ये इतना याद रखिए. देन इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इनडायरेक्ट इन नेचर और पूरा सिमिलर है on the lines of the elections of president. Indirect proportional representation, single transferable vote system and voting by secret ballot. ठीक है, what is single transferable vote system and proportional representation system? पिछले बार मैंने शायद से बोल दिया था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे कुछ बोल दिया था मैंने. ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन इन द टैगलाइन ऑल्सो. ठीक है, सो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने पिछले बार भी एक्सप्लेन किया था, पर वापस सुन लीजिए. क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्टीज ने अपना अपना कैंडिडेट बोल रहा हूँ, डिफरेंट पार्टीज आर फाइटिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तो बता दिया था कि द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट जिसके पास भी होंगे, जिस भी पार्टी के पास होंगे, दैट पार्टी विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इट विल इन फ्यूचर विल फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, बट ये हम अभी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नो, व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? पिछले बार भी एक्सप्लेन किया, पर वापस सुन लीजिए. सो ABCD, दीज ऑल पार्टीज आर फाइटिंग इन दिस इलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, मान लीजिए इनको वोट्स मिले 10%, 20%, 30% एंड 40%. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ठीक है, 100 हो गए. So 40%, 30%, 20% and 10%. Now in first past the post system, this particular D will be declared as winner. क्यों? क्योंकि इसने 50% मार्क तो क्रॉस नहीं किया, but it is more than these all three, है ना. 40 is greater than 30, 20 and 10 individually of course. So in first past the post system, this will be declared as winner on the basis of plurality of votes.
and not the majority of votes. Majority of vote means more than 50%. This is called majority of votes. But this particular first past the post system is based on plurality of votes. ठीक है. But as in this particular constituency, the election basis will be proportional representation. So it means the votes which is acquired by the particular party D in proportion to the votes acquired by the particular party, number of seats will be allocated in the legislature house. 30 3 मिल जाएंगे, 2 सीट्स मिल जाएंगी, 1 सीट मिलेगी. So this is nothing but proportional representation. The amounts of votes that are acquired by a particular party, in that particular proportion the seats will be allocated in the legislature. ठीक है. So this was proportional representation. First past the post भी आपको आगे बता दिया मैंने. And single transferable vote, I have told you, if we have 4 party candidates for running for the vice presidential election, so ECI, everything above the state level or at the state level, every election will be done by ECI, will be conducted by Election Commission of India under Article 324. So ECI will give you choices that which candidate you want to be the winner of this election. I will say C. Election Commission of India will mark first priority against C. Election Commission of India then asks me, then if this particular C will get eliminated in the first phase of election, then whom do you want to get elected as the vice president? I will say my second priority will be A. So यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही मैं 3 बोल दूंगा, यहाँ मैं 4 बोल दूंगा. It means till the time my first priority hasn't been exhausted, it is not out of the race, this particular priority is given importance. It means my vote will be counted in here and not in here and here. ठीक है. But the moment this particular C candidate will be out of the race, so then the priority second will evolve itself and will be marked as my vote. ठीक है. क्योंकि C तो एक रेस से बाहर हो चुका है, तो जो प्रायोरिटी 2 है, P2 है, प्रायोरिटी 2, इट विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इनटू माय ओरिजिनल वोट. पहले क्या था ओरिजिनल वोट 1, पर अब क्या है, जो मेरी प्रायोरिटी 2 है वो. सपोज इन दिस फेज A हैज बीन voted out. Now the election is between B and D. So which is my third priority? B. Candidate B. So my P3 vote, priority 3 vote will get evolved into my original vote. So this is nothing but single transferable vote system. It means you have only one vote, but it is transferable in nature. ठीक है. सीक्रेट बैलेट मतलब आपको सबको ही पता है, किसी को पता नहीं चलेगा कौन किसको वोट दे रहा है. सो दिस इज नथिंग बट सीक्रेट बैलेट. इसका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का होता है, इसका भी होता है. बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द दीज इलेक्टोरल कॉलेजेस आर, दिस इज द होल टर्म इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज. लोकसभा मेंबर्स प्लस राज्यसभा मेंबर्स, इट मीन्स एमपीज. मैंने कुछ लिखा है इसके आगे, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड? नो. इट मीन ऑल द एमपीज विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. यहाँ आप 2 बातें देख सकते हो. इन कंपेरिजन टू द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट्स आर नॉट इन्वॉल्व हियर. वाई द स्टेट्स आर नॉट इन्वॉल्व हियर? रीजनिंग ऐसे क्या करो कि स्टेट्स क्यों नहीं है इन्वॉल्व. रट्टाफिकेशन तो कोई भी कर सकता है कि यहाँ स्टेट्स नहीं वहाँ स्टेट्स है, बट ये है क्यों असली में प्रोविजन? बिकॉज इंडियन पॉलिटी इज फेडरल इन नेचर. ठीक है. अगर इंडियन पॉलिटी फेडरल है तो जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है विच इज नथिंग बट प्रेसिडेंट,
ही शुड रिप्रेजेंट द फेडरल करेक्टर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फेडरल करेक्टर कैसे आएगा? फेडरल करेक्टर तब आएगा जब इसके इलेक्शन में वी विल इन्वॉल्व स्टेट्स एज वेल एज सेंटर, है ना। if we are involving center or union as well as states in the election of the in the head of the state, so this ensures that India is federal in character. So इसीलिए president में, because the president is representing our states as well as our whole country, so that's why in the election of president states and center will get involved, but vice president is superficial in nature, ठीक है। Many of the constitutional experts call the position of vice president as his superfluous highness। तो ये क्यों बोला जाता है? ये दो तीन कारणों से बोला जाता है। एक तो इसका बस वाइस प्रेसिडेंट नाम दे रखा है, इसके पास कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं है, ठीक है। यस, ही कैन एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट, कब? जब वैकेंसी हो प्रेसिडेंट के ऑफिस में, but the maximum period he can act as a president is only 6 months, which is unlike the vice president of USA. Once the vice president of USA will convert his position to the president of USA, then this particular vice president will act as a president for the whole term. Understood? But in case of India, although this particular vice president position is on the lines of the vice president of USA, but the maximum time period of which our vice president can act as a president of India is only 6 months, because ECI has been mandated to conduct the election of president within 6 months of his vacancy, ठीक है। तो ये डिफरेंस बोल रहा था मैं यूएसए और इंडिया में। ये मैंने आपको कंक्लूजन बताई, यहाँ स्टेट्स क्यों नहीं इन्वॉल्व है और यहाँ स्टेट्स क्यों इन्वॉल्व है, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एज वेल एज सेंटर। बट वाइस प्रेसिडेंट के इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है कि ही इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स। और दूसरी बात, ये 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब क्या बोले कि मतलब प्रेसिडेंट भी अगर तुमको बनना तो भी तुम 6 महीने ही बनोगे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल इंडिया। फेडरल कलेक्टर आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो। डेट्स वाई वी हैव एक्सक्लूडेड द स्टेट्स इन योर इलेक्शंस। सो इन द इलेक्टोरल कॉलेज, Lok Sabha and Rajya Sabha members will be involved. There is nothing, no provision of elected or nominated. All the MPs will get involved in the election of the vice president. Understood? Qualifications. All the qualifications are same as the president. इसको रब कर देते थोड़ा। फर्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 years old, सबसे आसान, सिटीजन ऑफ इंडिया। देन शुडंट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो एक लास्ट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट इन केस ऑफ in case of vice president, the vice president should be qualified to become a member of Rajya Sabha, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें भी लॉजिक है क्योंकि राज्यसभा का ही क्यों बन सकता है। अभी आप देखोगे कि ऑल द प्रोविजंस, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस वाइस प्रेसिडेंट कंटेन्स ओनली स्पेसिफिकली राज्यसभा। अभी बताता हूँ, यहाँ एक आ गया, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नो, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वी विल बी स्टडिंग इन द राज्यसभा टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑन द सेम लाइन, प्रेसिडेंट हैज टू बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ। और ये वाइस प्रेसिडेंट भी, वंस दिस पर्टिकुलर पर्सन एक्वायर द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन ही शुडंट बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस।
सो इम्पार्शियल रहेगा ये, लाइक आवर प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. टर्म कितनी रहती है? 5 years की रहती है. और पहले भी रेजिग्नेशन दे सकता है, पर वो रेजिग्नेशन किसको देगा? ये रेजिग्नेशन पॉइंट, रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा भाई. ठीक है. इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट विल बी कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट. सब आपस का लेन देन है ज़्यादातर. अगर आप वाइस प्रेसिडेंट को बेसिस बनाओ, ना कि प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जब रेजिग्नेशन देता है किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को. ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ टेकिंग सेरेमनी कौन कंडक्ट करवाएगा? प्रेसिडेंट. वहां थोड़ा दिक्कत आ जाएगी. पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल सर्कल अराउंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जोड़ी. These 3 points have been covered. Removal. इसमें भी राज्यसभा has special power regarding the removal of vice president. ठीक है, तो ये दूसरी जगह राज्यसभा आया. But it should be also agreed to लोकसभा. तो राज्यसभा में मांगी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी और लोकसभा में मांगी है सिंपल मेजोरिटी. ठीक है. बट दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड मैंडेटरीली इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन राज्यसभा. उसी के बाद वो लोकसभा में ट्रांसमिट होगी. अंडरस्टूड? 2 जगह आ गया राज्यसभा. इन द केस ऑफ वैकेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है, पहले तो रिमूवल पे भी एक और भी बात कर लेते हैं. नो ग्राउंड्स has been mentioned in the constitution. Like in the case of president, a particular vaguely worded phrase has been given as the ground of removal or impeachment of president. That is violation of the constitution. But in case of vice president, no grounds has been mentioned. मतलब it is purely on the discretion of the legislature, parliament, कि हमको वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है या नहीं. अंडरस्टूड? तो मतलब जान रहे हो आप, इतना छोटी पोस्ट, मतलब बस उपाधि दी गई है इतनी बड़ी, पर पोस्ट बहुत छोटी है. इसकी पावर्स आर वेरी लिमिटेड इन नेचर. वैकेंसी, यहां देखो एक और बेइज्जती देखो. अभी वैकेंसी में ये बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट द केस ऑफ वैकेंसी एज सून एज पॉसिबल. ऐसा है, बेइज्जती की इंतहा कर रखी है. मतलब कभी भी करवा लो, यहाँ खाली है, कोई टेंशन नहीं है, और ऑफिस में कुछ नहीं है, मकड़ी वकड़ी धूल वूल नहीं जम रही है, कभी भी आने दो. पावर्स आई हैव टोल्ड यू. फर्स्टली ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज वैकेंसी इन द प्रेसिडेंशियल ऑफिस. यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है पावर्स में. एज ही इज होल्डिंग द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, so automatically he becomes ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman of Rajya Sabha में मतलब presiding officer of the Rajya Sabha, that is chairman of the Rajya Sabha. कौन है? our vice president. तो अगर आप टीवी पे कभी भी देखोगे इन द लोकसभा और राज्यसभा लाइव सेशंस, तो लोकसभा में आपको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे हुए मिलेंगे. ठीक है. एंड इन राज्यसभा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कौन बैठे मिलेंगे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. एक लास्ट है, पर ये भी बेइज्जती की टर्म में लिख दिया हुआ है, इनकम. याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट एज होल्डिंग द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट गेट एनी इनकम. ठीक है. तो ऐसे ही वो फ्री में बैठे उधर नहीं. He will get his emoluments, his income, by acting as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. It means he is holding and conducting affairs of the Rajya Sabha live discussions and debates. कैसे? क्योंकि वो चेयरपर्सन है, तो उसके पास पावर्स है ये सब लाइव डिस्कशन एंड डिबेट्स करवाने का. ठीक है.
as he is sitting on that particular chairman seat, that's why his income is coming on basis of that position and not on the basis of the vice presidential position. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. बहुत आसान था ना, ये याद रखना, बहुत छोटी पोस्ट बनाई है वाइस प्रेसिडेंट की. सो यू विल एबल टू रिलेट ऑल ऑफ दिस. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. छोटी छोटी क्लासेस होंगी क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.